Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thank you very much for joining me today's session. My name is Hamid Asad, and on behalf of Institute of Freelancing and PAF, Pakistan Air Force Finishing School, I welcome you all. Yesterday वाले सेशन में we have been discussing the basics things, दो या तीन basic tools जो हमने सीखे थे, उनके साथ we started up the development. और हमने बड़ा बेसिक अपना पर्सनल बिजनेस कार्ड या विजिटिंग कार्ड जो आपके फैशन इंटीरियर डिजाइन के बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करेगा, एंड इफ यू डू नॉट रिक्वायर्ड फॉर योर बिजनेस, इवन स्टिल इट इज रिक्वायर्ड फॉर योर एज एन प्रोफेशनल, एज एन फ्रीलांसर, एज चाहे आप लोकल मार्केट में काम करें, चाहे आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करें, चाहे आप अपने लिए काम करें या चाहे आप किसी के लिए काम करें, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अच्छा, कल के डिस्कशन के एंड पे we reached to a conclusion with a very basic 3 or 4 basic parameters of a business card or visiting card, and that was, one is the logo, the other one is the name and designation, and the third one was the addresses and contact numbers, and the fourth one is the basic color which we use just for one single color, maybe on the half side, maybe on half left, half right, half top, half bottom. The choice is yours. ठीक है, मैं आपको बिल्कुल बाउंड नहीं करूंगा कि मैं वो रिकॉर्डिंग करके और मैं जो चीज बनाऊं आप एग्जैक्टली उसी को ही कॉपी करें. नो, द आइडिया इज नॉट दिस. द आइडिया इज टू लर्न द टूल्स एंड केम अप विद योर ओन क्रिएटिविटी. सो आई होप कि आज हम अगले सेशन में कुछ नए टूल्स को लर्न करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज न्यू टूल्स वी विल कम अप विद न्यू क्रिएटिव थिंग्स, जिनकी मदद से हम अपनी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा बूस्ट या एनहांस करेंगे, वन लेवल अप करेंगे. सो लेट मी स्टार्ट अगेन विद द बेसिक थिंग जो कि कल हमने बेसिक किया था. दैट we started up with a new and 3.5 inches by 2 inches at 300 resolution, keeping in mind कि हमारा business card या visiting card is going to be printed, right? You are supposed to send this to a printer with RGB color या CMY के कलर में से दोनों जो बेहतर आप समझे लगा सकते हैं. लेकिन by the way, if you go for the printing for the details color scheming, जहाँ पे gradient color हम use करेंगे, वहाँ पे it's better कि आप CMY के use करें. अगर आप फ्लैट कलर्स यूज कर रही हैं तो सम टाइम इट इज रिकमेंडेड कि आप आरजीबी भी यूज कर सकते हैं. सो इंक्रीज माय वॉल्यूम. Let me check out. I assume my volume is already at the maximum level right now. Oh yes, your observation is very right. Can you hear me right now properly? I assume that with this volume you can hear me clearly. Okay, all set. Thank you. Right, so let's proceed with the basic things first. हमने कल क्या किया था? हमने basically text लिखा था. Text के साथ we came up with basic one side of जो उसकी हमने की थी. Instead of using, what you can do is you came up with this option also, right? Half color is for something else, for maybe half color tone and half different color tone, with half light and half darkish tone. This is something which you can do. Instead of going for this way, आप इसको इस तरफ भी प्लेस कर सकते हैं. इसको आप दोनों साइडों पे इतना और इतना भी प्लेस कर सकते हैं, राइट? दोनों साइडों पे लाइक इतना भी प्लेस कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू गिव यू एन आइडिया, लेट मी क्रिएट अ न्यू लेयर एंड just the same color which we used yesterday, set the foreground color. ठीक है, मैं ये दोनों प्लेस करता हूँ इस पे, and let's see what's the outcome now. So with these kind of basic things you can come up with more creative options. Like, तो आप इसके अलावा instead of going for this, आप ये कर सकते हैं कि आप half color this and maybe half color that, आप इस तरह भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, the half color could be very much your name, your designation, and यहाँ पे logo, and the bottom portion could be for the addresses, your social media address, your website address, and there are plenty of things like this. ठीक है, so मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं टाइप करूं और फिर दोबारा से लोगों को प्लेस करूं और एड्रेसेस लिखूं. इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दिस, आई विल लीव इट ऑल अप टू यू, because today's session is for one step ahead of this. Now let's suppose you have created up your first visiting card, right? हम इसके बाद
लोगो क्रिएट करने के बाद वी मूव फ्रॉम दिस स्टेप टू वन स्टेप अहेड एंड दैट इज फॉर एग्जांपल मैं इसको यहीं पे रखता हूँ ओके एंड लेट मी स्टार्ट कि इसी बिजनेस कार्ड के साथ चूंकि सारी आपकी इन्वेंटरी आपकी सारी की सारी ब्रांडिंग होने जा रही है सो इट स्टार्ट फ्रॉम बेसिक द विजिटिंग कार्ड बल्कि उससे पहले लोगो की कलर स्कीम के हिसाब से विजिटिंग कार्ड प्लस लोगो की कलर स्कीम के हिसाब से आपका letterhead that will be designed. There are two options for letterhead designing. Letterhead, चूंकि जाहिर है कि that is quite obvious, that would be a A4 page size. उसका background में there are plenty of things which could have been done. For example, let's suppose we started up with this color scheme and half this and half this. Okay, या चलें लेट सपोज इसको भी मैं अंडू करता हूं और लेट्स सी कि हम कल वाला जो हम स्कीम यूज कर रहे थे ऑलमोस्ट ऑफ दिस साइज ऑफ दिस कलर विद द लोगो सेम एंड टेक्स्ट एज यू ऑल नो कि यहाँ पे हमने टेक्स्ट लिखा था यहाँ पे वी केम अप विद द एड्रेसेस एंड वेबसाइट एड्रेसेस एंड ईमेल एड्रेसेस एंड मोबाइल नंबर एंड लैंडलाइन नंबर एंड ऑल दोज कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो भी आप अपने क्लाइंट तक या क्लाइंट चाहते हैं कि क्लाइंट आपको अप्रोच करे किसी भी मीडियम के थ्रू वो सारे के सारे अपने कॉन्टेक्ट आप लिखने हैं यहाँ पे यू केम अप विद द इंस्टीट्यूशन योर इंस्टीट्यूशन लोगो एंड विद द इंस्टीट्यूशन लोगो के साथ अपने 2 3 4 5 6 जो भी डिफरेंट टाइप ऑफ लोगोज जिनके साथ आप या आपकी ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड है वो अपने यहाँ पे प्लेस कर दिए सो कीपिंग इन माइंड द सेम हम आज क्रिएट करने जा रहे हैं न्यू से लेटर हेड बाय डिफॉल्ट होता है A4 साइज का सो A4 साइज की डायमेंशंस क्या होती हैं एज वी स्टार्टेड अप यस्टरडे लेट्स रोल बैक अगेन टू गूगल क्रोम आई होप कि आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी इफ इट इज नॉट क्लियर नाउ इट वुड बी क्लियर टू यू सो लेट्स गो टू गूगल एंड A4 साइज के height width A4 page size A4 page size in pixels maybe in anything आप सर्च कर सकते हैं पिक्सल्स में भी वो आपको बता देगा एंड 300 ppi के ऊपर पिक्सल्स पर इंच या आप हाइट विड्थ जस्ट इसकी A4 साइज हाइट एंड विड्थ आप ये सर्च कर लें एंड गूगल आपको हर चीज का आंसर दे देगा ठीक है एक ऑप्शन ये है इसके अलावा A0 A1 2 3 4 5 ये डिफरेंट पेजेस के साइजेस हैं राइट आप ये भी यहाँ से चूज करके उसके साइजेस इन mm यहाँ पे जाके हाइट विड्थ इन इंचेस आप ये भी देख के और सर्च कर सकते हैं और जो इंचेस में साइज आएंगे आप उनकी इनके हिसाब से हाइट एंड विड्थ के हिसाब से आप अपनी चेंजेस स्टार्टअप कर सकते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट A4 साइज so that is the A4 size width and height right so instead of going for this there is another option and let's roll back from Google search to Photoshop and preset में जाके what you can do is that international paper पे जाके यहाँ से A4 size ये आप चूज करते हैं by default it pops up with the details जो कि inches में आपको दे देगा right so that is 8 इंचेस बाय 11.5 इंचेस का A4 साइज होता है लेकिन ये 0.2 एंड 0.2 ऑलमोस्ट एक्सटेंडेड इसलिए क्रिएट करता है कि लेट्स सपोज अगर आपकी प्रिंटिंग प्रेस पे जब आपका डॉक्यूमेंट जाता है तो ये थोड़ा थोड़ा मार्जिन कटिंग मशीन छोड़ती है राइट सो बाय डिफॉल्ट अगर आप सिर्फ इस चीज को ज़हन में रखेंगे तो यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि ये थोड़ा थोड़ा लेफ्ट राइट से मार्जिन क्यों दे रहा है सो लेट्स सपोज अब हमें ये अंडरस्टैंड हो गया सो हमारे पास मार्जिन क्या है मार्जिन हमारे पास ये हैं कि लेट्स सपोज दैट्स द A4 साइज व्हिच वी स्टार्टेड फॉर आवर लेटर हेड डिजाइन तो हम मार्जिन में हम ये करते हैं कि ये जो रोलर साइज है Ctrl+R व्यू से रोलर्स आप ऑन कर लेते हैं दिस विल हेल्प यू अलॉट कि आपने अपना रेफरेंस पॉइंट कहां से स्टार्ट करना है ठीक है सो दैट्स द रोलर पॉइंट ये वर्टिकल ये हॉरिजॉन्टल आप इस पे क्लिक करें और इसको उठा के जिस जगह पे भी ले आए राइट सो लेट्स सपोज हम अपना सेफ मार्जिन के लिए यहाँ पे इसको प्लेस करते हैं समवेयर के हमारा टेक्स्ट वुड स्टार्ट समथिंग बिलो टू दिस लेवल ओके एंड
वर्टिकल के लिए हम इसको पिक करेंगे और ड्रैग करके ले आएंगे. लेट्स सपोज दिस इज योर सेफ मार्जिन ऑलमोस्ट 0 से ये पिक्सल थोड़ा सा, दैट इज योर सेफ मार्जिन. अब आपका जो भी इन लेटर हेड का ग्राफिक्स या आर्ट वर्क होगा वो इस डिजाइन के अंदर अंदर आना चाहिए. नाउ द चॉइस इज योर्स. अगर आप इसके अलावा यहाँ पे भी अगर आप चूज करना चाहते हैं और इसका बॉटम पे भी रखना चाहते हैं तो दैट इज वेरी मच ओपन टू योर चॉइस, राइट. इनमें से आप कोई चूज करें एंड यू कैन स्टार्ट. There's a question from in the chat box from Amna. कि margins not possible to set via page size as an MS Office. MS Office में भी almost इसी तरह है, लेकिन जाहिर है of course MS Office is not supposed to be developed for designing, so उसके जो margins हैं that are a bit different to this, लेकिन उसमें भी margins बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, right? So that's the answer of your question. So ये आपने मार्जिन अपने क्रिएट करने के बाद यू स्टार्टेड अप योर बेसिक थिंग वर्क. अच्छा जी, अब क्योंकि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी हमने सेम रखनी है. कॉर्पोरेट आइडेंटिटी मींस कि आपका लोगो इज समवेयर हियर एंड दिस थिंग विल बी ऑन द लेफ्ट साइड. सो लेट्स स्टार्ट बाय डूइंग वन थिंग कि हम अपने डॉक्यूमेंट को लेट्स सपोज यहाँ पे हल्का सा मार्जिन एंड द सेम कलर जो हमने वहां प्लेस किया था, we want that should be the same in the new layer first, and here it is the color scheme जो कि हमारा लेफ्ट हो, राइट. अब आप एक पॉसिबिलिटी है कि इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा डाउन करें. यूजुअली व्हाट हैपेंड इज कि डॉक्यूमेंट स्टार्ट होता है ऑलमोस्ट इस जगह से टू व्हाटएवर जिसको भी आप लिख रहे हैं एंड देन द टेक्स्ट कम्स एंड ये जो चीजें स्टार्ट होती हैं ऑलमोस्ट यहाँ से होती हैं. सो एंड करते 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 ज़ाहिर ऑटोमेटिकली यहाँ से यहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट का प्रीएम्बल और ऑलमोस्ट यहाँ पे आके खत्म होता है. सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. बीइंग ग्राफिक डिजाइनर, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, जो भी आपका डिजाइन से रिलेटेड काम है वो सारा कुछ इट इज वेरी मच योर चॉइस कि आपने एक कैसे किस हिसाब से करना है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द लेफ्ट साइड मैं इसको उठा के राइट साइड पे ले आता हूँ, it will give you another idea कि there is no problem. अब आपका टेक्स्ट वुड regardless यहाँ से जितनी मर्जी जिस साइड से भी स्टार्ट हो automatically it ends up almost somewhere here. and if you think कि ये इससे ऊपर जा रहा है तो डिजाइन में हम थोड़ी सी चेंज और कर देते हैं और वो हम चेंज ये करते हैं कि जिस हिसाब से भी ऑलमोस्ट टेक्स्ट आ रहा है हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक का एक बाउंडिंग बॉक्स या तो इसमें से डिलीट कर देते हैं, राइट, सो दैट कि आपका टेक्स्ट किसी हिसाब से भी डिस्टर्ब ना. एंड द अपर समटाइम समवेयर यहाँ के बजाय थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ताकि लोगो हम ऊपर प्लेस कर देंगे एंड बॉटम पे समवेयर हेयर कुछ इस तरह कर देते हैं. एंड लेट्स सी दैट्स योर लोगो अपीयर्स ऑफ एंड नॉर्मल टेक्स्ट इसी तरह का आपका स्टैंडर्ड इसके ऊपर आ जाएगा. एंड ऑटोमेटिकली बाय चॉइस अगर ये नीचे वाला पोर्शन इज फॉर योर टेक्स्ट जिसमें आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स और सारी की सारी डिटेल्स आपकी बॉटम पे आ जाएंगी एंड दैट्स हाउ योर लेटर पॉप्स अप. अगर आप इसके डिजाइन को थोड़ा सा और रिच करना चाहते हैं, थोड़ा सा और अपने ब्रांड को ज्यादा हाईलाइट करने के लिए लेटर हेड के ऊपर आप ये सारी की सारी चीजें प्लेस करना चाहते हैं तो बिल्कुल वैसे ही फाइल से जाके प्लेस करेंगे एज योर लोगो वाज देयर. मैं थोड़ा सा लोगो को सर्च कर लेता हूँ. नो सॉरी दिस इज नॉट द एकेडमी, सॉरी दैट लोगो इज इन इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग एंड इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग में इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग लोगो. लेट्स सपोज दिस इज द लोगो, वी प्लेस समवेयर हियर एंड डबल क्लिक के साथ वन पॉसिबिलिटी इसके छोटा सा करके इधर प्लेस कर सकते हैं. मैं इसकी बनाता हूँ 2 कॉपीज, राइट, दिस इज द लोगो. मैं इसकी बनाता हूँ 2 कॉपीज. कैसे? वन इज कि इसको ये राष्ट्रीय कॉपी, वन इसको मैं पिक करता हूँ और छोटा कर देता हूँ. वो किस तरह? बिल्कुल ऐसे ही सिलेक्टेड लेयर लोगो, एडिट एंड फ्री ट्रांसफॉर्म और उठा के जल्दी से इसको छोटा करके एंड प्लेस इट समवेयर एट द टॉप. ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे लें. चॉइस इज योर्स के कितने साइज का, छोटा बड़ा व्हाटएवर जिस भी साइज का रखना चाह रहे हैं. लेकिन कीप इन माइंड कि ये इस मार्जिन से अंदर अंदर टॉप से भी और राइट साइड से भी अंदर वाली साइड पे हो ताकि वर्स्ट कम वर्स्ट सिनेरियो में
अगर ये लेट सपोज प्रिंटिंग मशीन से बाहर जाए, प्रिंटिंग मशीन इसको कटिंग मार्जिन पे लेके आए, तो ये फिर भी दैट शुड पॉप्स अप इन द सेंटर। और दूसरा, अगर लेट सपोज, सॉरी, इसको सिलेक्ट करने के लिए यू हैव टू गो टू द फर्स्ट राइट एप्रोप्रिएट लेयर एंड लेट्स मेक अ बिग कॉपी ऑफ दिस, लेट्स मेक अ बिग कॉपी ऑफ दिस एंड प्रेस एंटर। एंड उसके बाद आप जाके इसकी ओपेसिटी को आप बिल्कुल 10% पे लीजिए। हाउ कैन यू डू दिस? देयर इज अ वेरी सिंपल मेथड टू डू इज, वन इज विद दी हॉट कीज या शॉर्टकट कीज के साथ भी आप जा सकते हैं। दी अदर इज के लेयर को सिलेक्ट करें, लेयर के ऊपर इसकी ओपेसिटी आ रही है, ओपेसिटी को डाउन करने का तरीका ये है कि इस पे क्लिक करें एंड यहाँ से इसको ड्रैग करके इधर उधर ले, राइट। या दूसरा तरीका ये है कि आप इस लेयर को सिलेक्ट करें, इसकी ओपेसिटी में 100% पे जाके क्लिक करें एंड डबल क्लिक करने से सिलेक्टेड हो जाएगा एंड मैनुअली यू कैन एंटर 10%, राइट, एंड प्रेस एंटर। अब बाय डिफॉल्ट इट इज गो बिहाइंड द टेक्स्ट और ये ऑटोमेटिकली बॉटम पे हल्का हल्का विजिबल होगा। इट विल एनहांस योर ब्रांड और ब्रांड की आइडेंटिटी को थोड़ा सा अपलिफ्ट करना शुरू कर देगा एंड दैट इज समथिंग वी होल्ड डिमांड फ्रॉम सम ऑफ द टाइम। जो ब्रांड ओनर्स होते हैं या फैशन या इंटीरियर डिजाइन की कंपनीज होती हैं, वो इस तरह के काम लाजमी करती हैं कि अपने ब्रांड को प्लेस करती हैं इन द सेंटर और उसकी ओपेसिटी को इतना डाउन करती हैं ताकि लेट सपोज, अगर हम लेट सपोज यहाँ से अपना टेक्स्ट ब्लैक में प्लेस करते हैं, लेट सपोज मैं एक डमी टेक्स्ट उठाता हूँ और डमी टेक्स्ट को यहाँ पे प्लेस करता हूँ समवेयर हेयर, तो और इसका साइज करता हूँ इंस्टेड ऑफ 8 लेट सपोज 14 या 16 इज द टेक्स्ट साइज। दिस इज आवर फर्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट। और मैं इसके फॉन्ट को बड़ा कर देता हूँ लेट सपोज एंड देयर क्वेश्चंस फ्रॉम आमना, hard headers and footer possible, can we not make a template in word and get it printed as a letterhead? Yes, of course we can do it, लेकिन अगेन वही बात, देखो वर्ड आपको ये चीज प्रोवाइड तो कर देता है बट वर्ड इज नॉट मेंट फॉर दिस पर्पस। वर्ड इज मेंट फॉर द टाइपिंग एंड बेसिकली वो सारी की सारी चीजें। लेकिन लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि जब आप जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में एज अ फ्रीलांसर एंड इफ यू से कि आई कैन डेवलप योर letterhead in probably MS Word, तो वो फौरन से क्वेश्चन कि MS Word is not meant for this, बन तो जाता है, बन तो मैंने letterhead AutoCAD में भी बनाया हुआ है। AutoCAD is not meant for the typing, लेकिन टाइपिंग आप AutoCAD पे कर सकते हैं। So logically things, ठीक है, there is no problem, you can do it and of course if you find this one difficult, I'm giving you the technology advantage, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हुए यू कैन डू इट एनी टाइम। सो लेट सपोज मैं यहाँ से एरियल जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट होता है टेक्स्ट का, एरियल मैं वो चूज करता हूँ एंड 14 के बजाय इसको थोड़ा सा हम फॉन्ट वो वाला कर देते हैं जिससे नजर आ सके, ठीक है जी। एंड लेट सपोज मैं इसको कॉपी करके पेस्ट 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 सॉरी एंड ओके जी, यस, यहाँ से जाके मैं इसको एंटर कर दूंगा एंड प्रेस दिस वन एंड देन एंटर, राइट। सो अब देखें कि आपका टेक्स्ट इज क्वाइट विजिबल अबव द ग्राफिक्स। सो ये सारे के सारे काम जिस तरह बिल्कुल उसने मेंशन किया, राइटली मेंशन कि कैन नॉट वी डू दिस इन वर्ड, यस एग्जैक्टली, वर्ड में बिल्कुल हो सकता है, वर्ड में भी आप सारा काम कर सकते हैं, बट द आइडिया इज कि फोटोशॉप is meant for different purposes। तो आज का हमारा लेक्चर वुड बी जस्ट फॉर द पब्लिशिंग रिलेटेड, ठीक है ना। तो इसमें ये सारे काम हम कर सकते हैं। अब इसके बाद दिस इज व्हाट यू कैन डेवलप। अब yes absolutely, footers and headers we can go to the different layers और उस पे हम लेयर से मेंशन कर सकते हैं that is the header and that is the footer। फॉर एग्जाम्पल ये तो ज़ाहिर है, ये तो आपने लेटर हेड में तो ये चीज नहीं आती, लेटर हेड तो समथिंग लाइक दिस होगा, यहाँ पे बॉटम में आपके एड्रेसेस आ जाएंगे और कॉन्टेक्ट नंबर्स आ जाएंगे, उसको आप ले सकते हैं, दैट इज योर बॉटम लेयर। एंड हेडर में यूजुअली कंपनी के लेटर हेड्स के टॉप पे कुछ ज्यादा चीजें नहीं होती, बिकॉज समटाइम्स आप अपनी तरफ से मेंशन करते हैं कि टू होम इट मे कंसर्न या समथिंग लाइक दिस या थिंग्स लाइक दिस, राइट।
सो ये है बेसिक कॉन्सेप्ट इसका। अब हम चलेंगे इसके बाद नेक्स्ट डेवलपमेंट फेज के ऊपर कि इसी लेटर हेड या इस डिजाइन का अब आप इन्वेलप कैसे बनाएंगे। यस, अब लेट्स सपोज आपने ये चीज बेसिक बेसिक बनाई, बेसिक डिजाइन आपने किया, उसके बाद आप इस लेवल पे आए, देन उसके बाद अब आप इन्वेलप कैसे बनाएंगे। अगेन आप देयर आर टू आइडियाज। वन इज कि आप इसको इस पेज के साइज को चेक करने के लिए, इन्वेलप के साइज को चेक करने के लिए टू द गूगल, एंड गूगल जाके आप वहां से इन्वेलप का साइज चेक करें कि A4 साइज इन्वेलप साइजेस, एंड तो वो आपको डिफरेंट साइज बता देगा कि अगर आपका A4 साइज है तो उसका एनवेलप वुड बी ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा यहाँ से बड़ा होगा ताकि ये एनवेलप रोल होने के बाद उसके एनवेलप के अंदर आ जाए। अच्छा जी, आई जस्ट नॉट वांट कि मैं गूगल पे जाऊं और दोबारा से वही चीज सर्च करूं, एज वी ऑल नो कि अब हम जो ऑलरेडी कर चुके हैं इसके बाद दोबारा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बाय डिफॉल्ट मैं आपको तरीका एक और बता रहा हूं जो कि अभी हमने नहीं अप्लाई किया। फॉर एग्जाम्पल, यही आपका साइज A4 साइज का वी पिक्ड अप फॉर अ न्यू डॉक्यूमेंट। ये मैंने ओपन नहीं, सॉरी, न्यू डॉक्यूमेंट, एंड न्यू डॉक्यूमेंट से जाके A4 साइज का ही आप दोबारा टेम्पलेट ओपन करते हैं, एंड पिक्सल्स या वटेवर आप इंचेस जो भी आप करना चाहते हैं आप इंचेस पे जाएं। चूंकि इंचेस हमारा स्टैंडर्ड था तो इंचेस से हमने काम स्टार्ट किया। नाउ अब हम क्या करेंगे कि अगर इसकी विड्थ 8.2 है तो हम इसकी विड्थ को इंक्रीज करके 8.6 या 8.5 से अबव कोई भी करें, राइट। द हाइट वुड बी डिवाइडेड बाय 3 ऑफ 11। लेट्स सपोज दिस इज इन टोटल 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 3, दैट वुड बी योर envelope size. So logically there are too many ways to do it, लेकिन 4 इंचेस का अगर आप साइज लेंगे तो दैट वुड पॉप अप लाइक ऑलमोस्ट दी एनवेलप साइज। जो आपके लेटर जब ये 3 टाइम्स फोल्ड होके रोल होके जब एनवेलप में आएगा तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, राइट। अब आपकी अगेन योर चॉइस, क्रिएटिविटी स्टार्ट्स बेसिक कि अब आपने लोगो किस जगह पे प्लेस करना है। अब आपने पहले किया इस तरफ, लेटर हेड में किया आपने इस तरफ, now you came to this envelope और envelope पे कर दिया आप इस तरफ, right? So this is something which is very much open and your choice कि आप इनमें से क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है। So for example now I go for this option, right? And let, चूंकि यूजुअली होता ही है कि इस वाले पोर्शन में जिसको आप सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस आता है, एंड ऑलमोस्ट इस जिस भी लोकेशन तक आप इसका सेंटर पॉइंट से ऑलमोस्ट थोड़ा सा इधर, दैट इज sender address, means your address would be printed and the logo would pops up somewhere, something like this somewhere, ठीक है ना। और इसके साथ आपकी कॉन्टैक्ट एंड और कंपनी की डिटेल्स और वो सारा कुछ आ जाएगा। So dear students, there is nothing as such difficult. It is all your creativity, all is your choice. अब मैं चाहता हूं यहां से वापस अपने टूल्स की तरफ, बिकॉज हमने स्टैंडर्ड ये एक टेम्पलेट, दिस वाज द वन, दिस इज द थिंग वी पिक्ड अप, एंड रेक्टेंगल मार्की से हमने स्टार्ट किया था और उससे हम करते करते स्टेप बाय स्टेप वी मूव अहेड। अच्छा, बाय द वे यू कैन प्लेस इट सम एट द टॉप आल्सो, राइट। तो ये मैंने गलती से प्लेस कर दिया बैकग्राउंड के ऊपर ही, सो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करनी है टू मेक इट इन द न्यू लेयर, और जहां भी आपसे मिस्टेक हो जाए यू कैन अनडू दिस। अनडू करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैं साथ साथ आपको वो भी बता देता हूँ। वन इज दी Ctrl+C या एडिट से जाके अनडू, लेकिन कीप इन माइंड बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप विल गिव यू वन ऑप्शन फॉर अनडू, लेकिन अगर आप वन ऑप्शन से ज्यादा जाना चाहते हैं तो देर आर टू ऑप्शंस। वन इज द शॉर्टकट की, द सेकंड वन इज विंडो से जाके हिस्ट्री ओपन करना। हिस्ट्री क्या करेगी, जो जो इस डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने अप्लाई किया था वो सारा कुछ आपको दिखाना शुरू कर। लेकिन अगेन आई थिंक इसकी ऑप्शंस 20 तक की है, 20 के बाद की फिर खत्म होना शुरू होती है। सो एट द एंड अगर 20 से भी पीछे की आपकी कुछ चेंज थी तो दैट वुड बी वाइप्ड आउट। लेट्स सपोज हमने फर्स्ट क्या किया, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट किया था, उसके बाद ये रेक्टेंगल हमने लगाई थी, उसके बाद हमने फिल किया था, उसके बाद डी सेलेक्ट किया था, फिर रेक्टेंगल इस तरफ लगाया था और फिर रेक्टेंगल को शायद हमने डी सेलेक्ट किया, व्हाटएवर।
अच्छा जी, अब आप जो भी करना चाहते हैं आप उसको डिलीट करते जाएं। यस, देखिए ये मैंने बॉक्स लगाया था, इसको भी डिलीट कर दें। ओके, यस। इसके बाद इफ़ यू रिमेंबर मैंने ये बताया था कि आपके सेंडर का एड्रेस यहाँ पे आएगा, आप इसको भी डिलीट कर दें। यस, और डीसेलेक्ट किया था तो ज़रा डीसेलेक्ट को तो सेव करने की जरूरत नहीं है। फिल कलर ये हमने फिल किया था इसमें। लेट सपोज हम इसको भी डिलीट कर देते हैं। दिस इज नॉट द लेयर डिलीशन, दिस इज द हिस्ट्री डिलीशन। ठीक है, हिस्ट्री में से आप करते करते समथिंग रॉन्ग विद माय ऑडियो। यार ऑडियो तो आई थिंक फुल मैंने की हुई है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज चेक योर स्पीकर्स और हेडफोन्स। there's nothing wrong from my side. प्लीज कोई और बंदा इंटीमेट कर सकता है इज माय वॉइस इज क्लियर, या मैं आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की वजह से मेरी आवाज भी आहिस्ता होती जा रही है। ओके चलें जी, क्लियर, थैंक यू मारिया। अच्छा जी, अब आप बेसिकली करेंगे ये कि यहाँ से हिस्ट्री में से जाके आप लास्ट फिल वाली कमांड को कर देंगे डिलीट। इसके बाद ये रेक्टेंगल मार्क की थी, अब चॉइस इज योर्स। अगर आप इसको भी डिलीट करना चाहते हैं तो चॉइस इज योर्स। इफ यू वांट कि इसको डीसेलेक्ट कर दें, दोबारा मार्क की इससे बाहर तक क्लिक कर दें, तो ऑटोमेटिकली ये आपकी हिस्ट्री में एक नई चीज ऐड हो जाएगी। एंड यू कैन इवन स्टिल डिलीट दिस वन एंड क्रिएटेड अ न्यू डॉक्यूमेंट, फर्स्ट वहां से आ गया था। ठीक है, दिस इज द हिस्ट्री ऑप्शन। हिस्ट्री के अलावा लेट सपोज मैं अनडू शॉर्टकट कीज, मैं लेट सपोज एक बॉक्स लगाता हूँ यहाँ पे, उसमें मैंने कलर फिल किया, उसके बाद मैंने लगाया यहाँ पे, उसके बाद कलर फिल किया। नाउ यू फाइंड आउट के मैं जो जो कुछ करता जा रहा हूँ वो फॉर द एक्सपेरिमेंट पर्पसेस मैं लगाता जा रहा हूँ। लेकिन अब आप गौर से देखें कि आई एम बाय मिस्टेक आई एम डूइंग ऑन द बैकग्राउंड लेयर। नाउ इफ इट इज इम्पोर्टेंट, अगर ये इम्पोर्टेंट है टू रिवर्ट इट बैक, तो यू हैव टू वन ऑप्शन अगेन, एक जो लास्ट ऑप्शन है वो भी आपको बताता जो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हिस्ट्री द अदर ऑप्शन इज कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, दैट इज द शॉर्टकट की जो कि एडिट में नहीं है। स्टेप फॉरवर्ड एंड स्टेप बैक, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी से आप वन स्टेप आप बैक करते जाएंगे। सॉरी, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी। ठीक है, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी, सॉरी मैं कंट्रोल शिफ्ट जी इज फॉर समथिंग एल्स, कंट्रोल प्लस आल्ट प्लस जी। there are three keys which you have to press at the same time. One is control plus alt plus z. तो अगेन इसकी भी लिमिटेड ऑप्शंस हैं, गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए तो दिस इज द ऑप्शन विच हेल्प्स यू आउट, लेकिन नॉट मोर देन अगेन 20 ऑप्शंस। 20 तक ये बैक जाएगी, उसके बाद वो कहेगी कि बस मैं इससे ज्यादा अपनी मेमोरी में अनडू की ऑप्शंस को सेव नहीं कर सकता, राइट? So this software doesn't allow you to do that thing. अच्छा जी, so यहाँ तक हम पहुंच गए with the help of simple जो आपका रेक्टेंगल टूल है उसके हिसाब से हमने यूं किसी भी जगह किसी भी %, इस तरफ किसी भी शेप पे हमने जाके ये बॉक्स बनाया और डिजाइन शुरू कर दिया। लेट सपोज इफ माय रिक्वायरमेंट पॉप्स अप समथिंग लाइक यहाँ से लेकर और यहाँ तक कर। So what is the option? The option lies behind this rectangle tool, and that is called polygonal lasso tool, right? Polygonal lasso tool से आप किसी भी specific area में you can place the selected area. Let's suppose वहां से इस column को आपने select किया and you came up with the box, complete box. लेकिन ये सिलेक्शन कंप्लीट तब होगी जब आपका फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट ज्वाइन हो। एंड ज्वाइनिंग पता कैसे लगेगा? बी केयरफुल कि जो एंडिंग पॉइंट जो इस टाइम मैं घुमा रहा हूँ जिसको, दिस वुड एग्जैक्टली क्लोजर टू एग्जैक्टली उसके ऊपर जाके आएगा एंड उसके साथ सर्कल का एक जूम इन कर जाएगा। जैसे ही मैं इसे हटाऊंगा सर्कल गायब हो जाएगा, जैसे ही इसके पास आऊंगा सर्कल मींस नाउ द सिलेक्शन सर्कल इज कंप्लीट, राइट? अब यू नीड नॉट टू बी वरीड कि आपके आर्ट बोर्ड से ये नीचे वाला कलर किधर जाएगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। हम जाते हैं क्रिएट अ न्यू लेयर के ऊपर। नाउ हम यहां से इस वाले में सिलेक्टेड एरिया के अंदर फिल करते हैं ये वाला कलर।
विद द पेंट बकेट टूल इसके अंदर आप फिल कर देते हैं एंड डी सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस डी या रेक्टेंगल टूल पे इस बाहर जाके क्लिक करें. So that is how you can start your creative work with different kind of tools. Aman, is there any question you wanted to ask? Aman, you have unmuted yourself. Okay, Sadaf Iqbal also. अगर क्वेश्चन है तो फिर जरूर अनम्यूट करें, अदरवाइज इट्स क्वाइट अ बिट डिस्टर्बिंग. इसमें समझ नहीं आ रही होती कि यू वांट टू आस्क एनीथिंग और व्हाट इज द रीजन यू अनम्यूट योरसेल्फ. ओके जी, लेट्स मूव अहेड. राइट, सो दैट इज द थिंग जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं. अगेन नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, ये दिस टूल विल एक्चुअली गिव्स यू अ स्ट्रेटर लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन, नॉट द सर्कुलर लाइन. सर्कल नहीं होगा, ये स्ट्रेट स्ट्रेट जाएगी. एट एनी एंगल दिस विल गो फॉर द स्ट्रेटर ऑप्शन. राइट, तो लेट सपोज मैं इसमें और इसमें मैं एक नई लेयर क्रिएट करने के बाद इसमें भी ये कलर फिल करूं. ओके, एंड डी सेलेक्ट के लिए अगेन कंट्रोल प्लस डी या क्लिक बाहर करता हूं. सो दैट इज हाउ यू केम अप विद another classic design. अब आप company branding you can place it somewhere inside here and let's suppose हम एक dummy brand का text place करते हैं somewhere here, right? So that could be the text. Let's suppose हम select करते हैं text. सबसे पहले कौन वो स्टूडेंट था जिसने अपना ब्रांड बनाया था and he showed me the name of that brand. Can you please pop up? I just wanted to have discussion with you. किसने ब्रांड बनाया था and just sent me as in query के can we use this brand? You can unmute yourself and let's see what's the best outcome we can came up with. Can you please unmute? या वो आज नहीं है हमारे साथ. Okay, that means that that student जिसने अपना ब्रांड बनाया था and she said कि मैं अभी सबके सामने शो नहीं करती because different comments आने शुरू कर देंगे and I feel very embarrassed कि अगर किसी ने कह दिया कि it's not good. चलो, तो let's suppose be confident, there is no problem. We are talking about one brand name and that is, चलो मैं अपना ही शुरू कर देता हूँ, Institute of Freelancing. ठीक है जी. So let me click on this Institute. Let's suppose मैं कैपिटल कर देता हूँ. ठीक है जी, ऑफ फ्रीलांसिंग. अच्छा, देयर इज अनदर स्टूडेंट जिनके फादर की तरफ से कल मुझे रिक्वायरमेंट आई थी. आई डोंट नो हु वाज दिस, कर्नल कादिर है या कौन है, उनकी बेटी जिनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके पास मैकिंटॉश है और उनके पास फोटोशॉप नहीं है. तो मैंने आज सेम अपनी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर का लिंक दोबारा से शेयर कर दिया है. यू कैन डाउनलोड बाय द वे द फोटोशॉप for the Macintosh and Illustrator for the Macintosh both, right? So जिसको भी requirement है for the Mac, you can just go there and download the appropriate software. अच्छा जी, चलिए, that's the brand name. और इसको मैं font अब थोड़ा सा more appealing, more interesting font pick करेंगे. Interesting font क्योंकि we are talking about the text सबसे पहले. So let's click on text so that के ये टेक्स्ट की लेयर सेलेक्ट हो सके, या आप एंड से सारा का सारा सेलेक्ट कर लें एंड गो टू द फॉन्ट्स एंड यहां से डिफरेंट फॉन्ट्स. अच्छा जी, फॉन्ट्स के लिए एक मैं मजे की चीज और आपको बता दूं यहाँ पे चलते चलते एज एन इंफॉर्मेशन कि इफ यू वांट टू हैव अ फ्री गुड क्वालिटी फॉन्ट्स, सो बहुत आसान है. वेरी इजीली यू कैन डाउनलोड एनी ऑफ द फॉन्ट जो भी आपको चाहिए. उसके लिए let me select this one first. मैं साथ साथ आपको let's roll back to the websites first. Please confirm, can you see my Google Chrome screen now? Okay, right. So फिर that means अब आप जाएंगे यहाँ से न्यू ब्राउजर विंडो के ऊपर, या एड्रेस बार्स में जाकर लिखेंगे fonts.google.com. Here becomes, right, thousands and thousands of free logos. वो सारे के सारे logos जो आप use करना चाहते हैं for your
ब्रांड फॉर योर ग्राफिक डिजाइन या इंटीरियर डिजाइन या फैशन डिजाइन के ब्रांड के लिए आप यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे अपना जो भी टेक्स्ट जिसके मुतालिक भी आप फॉन्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, आप वो फॉन्ट चूज करें। सॉरी, ये तो फॉन्ट सर्चिंग के लिए है। टाइप्स सेंटेंस यहाँ पे लिखना है आपने, ठीक है जी। इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रीलांसिंग, राइट। ये देखें जी, आप ये डिफरेंट फॉन्ट्स हैं। आप इनमें से फॉन्ट का साइज को बड़ा करके देख सकते हैं कि आपको जो फॉन्ट इनमें से अच्छा लगता है। आप लेट सपोज हमें कोई ये वाला फॉन्ट चाहिए, तो आप इस पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इट विल ऑटोमेटिकली गिव यू ऑप्शन, इसकी डिफरेंट चीजें एंड डाउनलोड की ऑप्शंस यहाँ पे आपको दे देगा कि हाउ टू डाउनलोड दिस। ये डाउनलोड फैमिली, ये टॉप पे डाउनलोड फैमिली। तो इस तरह जब आप डाउनलोड कर लेंगे, डाउनलोड करने के बाद डबल क्लिक से या राइट क्लिक से इंस्टॉल हो जाएंगे फॉन्ट्स एंड यू नीड टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर एंड हियर वी गो। अच्छा जी, ओके, हम बाय द वे वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, सो हमारा ये सेशन कंटिन्यू है अभी। ओके, एज सुन एज ये सेशन खत्म हो, या लेट सपोज मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप दोबारा मुझे ज्वाइन करें व्हाइल क्लिकिंग ऑन द सेम लिंक। ओके, इंस्टेड ऑफ दोबारा से हम अगर शट डाउन होते हैं या रीस्टार्ट करते हैं, मैं अभी आपसे कह रहा हूँ कि लेट्स वाइंड अप हियर एंड उसके बाद दोबारा ज्वाइन करें।